Hello everyone. So let us continue with the same topic, physical quantities and the dimensional formulas. In the previous lecture we have discussed some physical quantities based on rotational mechanics and we have derived dimensional formula for that quantities. The last quantities which we have seen was angular momentum. So now next one from the same topic is number 19, angular momentum, then radius of gyration जिसका रिलेशन होगा लेंथ के साथ, सो लेंथ एंड डायमेंशनल फॉर्मूला L1 in the SI unit meter. Then next one is moment of inertia. Moment of inertia, mass into radius square. So dimensional formula will be mass means m1 into radius square means L2. So m1 L2 T naught. SI unit kilogram meter square. So this one is from rotational mechanics, moment of inertia. Now the next one is time period, frequency, which are also based on angular or we can say rotational mechanics. 21 number, frequency, direct relation, frequency, it means this one is basic fundamental quantities relation. So 1 upon time. So 1 upon time, it means t minus 1. Then 22 number, time period, direct relation, time, basic quantities. So T1 and unit is second, and for this second inverse or hertz on the name of scientist. So these 22 quantities are quantities which are based on mechanics. Now the next one we will start from thermal quantities or thermal parameters. So from 23, number 1 we can say, or number 23. First one is heat. Heat means energy, direct relation. एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, m1 L2 T minus 2. So SI unit will be joule. Now second one, temperature. This one is basic fundamental quantity. So कोई रिलेशन नहीं होगा, ये खुद बेसिक क्वांटिटीज है. So K1 unit Kelvin. Number 3, heat capacity. Then number 4, specific heat capacity. Then number 5, molar specific heat capacity. Then number 6, latent heat. So ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज, जो टेम्परेचर, जो हमारे थर्मल रिलेशंस में होंगे, और ये चारों क्वांटिटी इंटर रिलेटेड होगी. सो हमने चारों को एक साथ में लिखा. हीट कैपेसिटी, energy required to change
टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट 1 केजी ऑब्जेक्ट का, 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसीलिए हमने इस तीनों को स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है। हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट, किसी भी 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर करने में जो टेम्परेचर चेंज करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये तीनों इंटर रिलेटेड। एंड द लास्ट वन इज लेटेंट हीट, जिसका मास के साथ रिलेशन होगा। सो ये इसीलिए चारों क्वांटिटी हमने एक साथ लिखी, जो आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 या 13 में आपको पार्ट 2 वाले जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है उसमें ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन डिटेल आप स्टडी करोगे। सो अभी बेसिक सिर्फ आपको रिलेशन याद रखने हैं, या फिर आपको एग्जामिनेशन में इसमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज पूछेंगे तो आपको बेसिक रिलेशन वहां पे ऑलरेडी इंडिकेट किया गया होगा, सिर्फ उस बेसिक रिलेशन के बेस पे आपको इसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने होंगे। सो हीट पर टेम्परेचर, then specific heat capacity, heat per mass into temperature, then molar heat per mole into temperature, ये basic relation. And the last one is latent heat, हीट पर मास। सो अब इसके बेसिस पे हम डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हीट मीन्स m1 l2 t-2 अपॉन टेम्परेचर k1। सो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m1 l2 t-2 k-1, then m1 l2 t-2 upon mass means m1, temperature means k1. So final dimensional formula will be m0 l2 t-2 k-1, then m1 l2 t-2 upon mole means mol, temperature k1. So final answer will be m1 l2 t-2 mole inverse Kelvin inverse. And the last one is heat per mass. इसको हम यहाँ पे ही डिफाइन करेंगे। heat means m1 l2 t-2 upon m1. So final formula will be l2 t-2. So now SI unit on the basis of dimensional formula. Heat means joule per Kelvin, joule per kilogram into Kelvin, joule per mole Kelvin, and for this L2 t-2 या फिर heat per mass it means joule per kg. So these are the basic or we can say derived quantities for the thermal properties. So please take a screenshot, then we will start the next physical quantities. So now the next one from the heat relations, Boltzmann constant relation energy per temperature
That dimensional formula, energy means m1 L2 T minus 2 upon temperature means K1. So the final relation is m1 L2 T minus 2 K minus 1. And the SI unit, energy means joule per Kelvin. Now the next one is Stephen's constant. Stephen's constant, which is equal to, अब ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो आप ऑलरेडी थर्मल प्रॉपर्टीज के चैप्टर्स में, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करने वाले हो, तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी के लिए कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी का मेन कंसेप्ट हम यहाँ पे इस जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमने सीखी अभी तक, तो सिर्फ इसमें हमने ये मेथड, कैलकुलेशन की मेथड हमने सीखी है. सो प्लीज ये सारी क्वांटिटीज को देख के आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हमने पहली बार नाम सुना. सिर्फ हमने इस टेबल में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम स्टडी करने वाले हैं इन फ्यूचर, वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने ऐड किया है. वन बाय वन जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करोगे आपको ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएगी, आपको इसका डिटेल कन्वर्सेशन उस चैप्टर्स में दिया गया होगा. सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड टेंशन बिल्कुल मत लेना है यहाँ पे, बिकॉज जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सिर्फ हमने उसका नाम, उसका रिलेशन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन किया जो हम ऑलरेडी स्टडी करने वाले हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. नाउ स्टीफन कांस्टेंट. अब स्टीफन कांस्टेंट के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो होगा E इज इक्वल टू सिग्मा E A T रेज़ टू 4. जो फॉर्मूला हम थर्मल प्रॉपर्टीज के चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट आपको सिर्फ यहाँ पे रिलेशन पता होना चाहिए. जहां पे सिग्मा होगा हमारा डायमेंशनल, ये फिजिकल क्वांटिटी स्टीफन कांस्टेंट. सो एनर्जी पर एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर रेज़ टू 4. तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमें यहां पर डिफाइन करनी है. अब एनर्जी, टाइम, एरिया एंड टेम्परेचर ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमने ऑलरेडी डिफाइन भी किए हैं. सो एनर्जी के लिए हम डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर एनर्जी m1 L2 T minus 2, देन एरिया L2, टाइम T1 and temperature K raised to 4. So final format will be M1 L2 यहां से कट, L0 T minus 3 K minus 4. So ये हमारा फाइनल बेसिक फॉर्मूला M1 L0 T minus 3 K raised to minus 4. अब इसका ऐसा यूनिट, so energy means joule per meter square second Kelvin raised to 4. इसी को फर्दर भी हम डिवाइड कर सकते हैं. जूल को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे और इसको फर्दर हम इसी डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस पे भी लिख सकते हैं. अगर इसके बेस पे लिखना होगा तो m1 मींस किलोग्राम, L0 T minus 3 it means second raised to 3, K minus 4 into 1 upon Kelvin raised to 4. तो ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पे हम ऐसा यूनिट लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज 9 सोलर कांस्टेंट. सोलर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू, अब सोलर कांस्टेंट ये फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी पर एरिया इनटू टाइम. एनर्जी पर एरिया इनटू टाइम विच इज इक्वल टू, इसको और भी हम क्लेरिफाई करेंगे तो पावर पर एरिया, बिकॉज एनर्जी पर टाइम विच इज इक्वल टू पावर. अब एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m1
L2 T minus 2 upon area L2 into time T1. So final answer M1 L0 T minus 3 and unit watt per meter square or joule per meter square into second. Joule per meter square into second. And the last one is number 10, which is most important, thermal conductivity, जिसको हम एमसीक्यू के टर्म में या फिर एक न्यूमेरिकल के टर्म में अगेन डिराइव भी करेंगे, बट यहाँ पे इस टेबल में ये थर्मल प्रॉपर्टीज का ये लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन करेंगे। अब थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन, थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होगा, हीट इनटू, अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी ये कांस्टेंट के टर्म में हम स्टडी करेंगे। सो हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर, एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर। अभी 3 लार्ज क्वांटिटी आपको ऑलरेडी डिफाइन करी होगी, सिर्फ आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। तो इसको देख के टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्टली आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला हीट मींस m1 l2 t minus 2 into distance l1 upon area l2 into time t1 into temperature k1. So final dimensional formula m1 l2 कट l1 यहाँ पर और एक बचेगा t minus 3 k1. तो ये हमारा फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इस टाइप के थर्मल प्रॉपर्टीज के रिलेशन हम स्टडी करेंगे। अब इसका ऐसा यूनिट जो भी बाकी है, डिस्टेंस सॉरी हीट मींस जूल, डिस्टेंस मींस मीटर पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड इनटू केल्विन। मीटर से 1 मीटर कट हो जाएगा, सो जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन। तो ये हमारा फाइनल ऐसा यूनिट फॉर दी थर्मल कंडक्टिविटी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करेंगे और मैग्नेटिज्म वाले जो क्वांटिटीज बाकी है उसके डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। देन वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल फॉर्मूला। टेक अ स्क्रीनशॉट।